Hello, welcome back to my channel. Thank you so much for watching RJ Palak Vlogs. And आज थोड़ा सेटअप डिफरेंट है. आज मैं घर से हूँ and आज का दिन एक्चुअली ख़त्म हो चुका है and I'm home after finishing all work. पर कल ना एक बहुत ही स्पेशल चीज़ हुई. कल we had सचिन संघवी from the duo सचिन जिगर visiting us. उनका नया सॉन्ग धीमे धीमे लेकर અને એમની સાથે વાત કરીને એટલી મજા પડી. उनके साथ बहुत सारी बातें की अबाउट ऑल सॉन्ग्स, बहुत सारी इनसाइड स्टोरीज अबाउट धीमे धीमे, अबाउट लाडकी, अबाउट राधा ने श्याम, अबाउट हिज जर्नी. बहुत सारी इनसाइड स्टोरीज और कुछ ऐसी बातें जो एक्सक्लूसिवली सिर्फ आपको यहीं पर सुनने को मिलेगी. सो वो इंटरव्यू राइट नाउ आई एम प्लगिंग इन. सो देखिए और बताइए मुझे कैसा लगा. 94.3 માય FM થી હું છું તમારી RJ પલક અને one of my checklist is going to be fulfilled today. As you can see that I am shivering already because આટલો ટાઈમ થયો and I was always like કે when I'm going to take Sachin's interview or Jigan's interview or બંને જણા સાથે ક્યારે આવશે અને મારી સાથે આ સ્ટુડિયોની અંદર ઇન્ટરવ્યુ કરશે. Today we have none other than Sachin with us. Hello Sachin, how are you? Ooh, I'm good. Thank you for the warm welcome. અને પલક હું તને એવું બીવડાવું છું કે તું શિવર કરે છે. અરે બીવડાવો છો સર, એમાં એવું છે કે પણ આજ સુધી એવો મોકો નહોતો આવ્યો કે તમે પધારો અહીંયા એન્ડ ફાઇનલી યુ હેવ કમ, સો ઇટ્સ એન ઓનર ટુ ઇન્ટરવ્યુ. Thank you, yeah, thank you. સો સચિન, લેટ્સ સ્ટાર્ટ વિથ યુ એન્ડ યોર જર્ની. Right. સો એક તો સૌથી પહેલા બિંગ ગુજરાતી, બધા જ ગુજરાતીઓને પહેલું કોઈક મ્યુઝિકથી પ્રાઉડ થયું હોય તો દેટ ઇઝ ઓલવેઝ સચિન જીગર. Oh wow. એન્ડ વેન ઇટ ઇઝ યુ ગાઈઝ, અમે લોકો આંખ બંધ કરીને વિશ્વાસ કરતા હોઈએ કે આ છે ને ગુજરાતીઓને એકદમ પ્રાઉડ ફીલ કરાવશે. Yeah, I wish and hope કે એવું કલ્ચર કે એવો ટ્રેન્ડ કે એવી વાર્તા સેટ થાય કે સચિન જીગર આર નોટ ધ ઓનલી વન મેકિંગ યુ પ્રાઉડ અબાઉટ ગુજરાતી મ્યુઝિક. આઈ રિયલાઇઝ કે બહુ ઇન્ટરનેશનલી છે ને આપણે બહુ મિસરિપ્રેઝેન્ટેડ છે. લોકોને એમ થાય કે ગુજરાતી મ્યુઝિક એટલે ગરબા હશે કે દાંડિયા હશે એમ, પણ તો લાડકી પણ છે અને પાપા પગલી પણ છે. ખાલી યાદ દેવડાવીએ છે તમને કે આવું સંગીત હતું, એક આવું અવિનાશ વ્યાસ એક છે ને, એક 10 વર્ષનો દાયકો હતો કે જેમાં વિશ્વાસ તૂટી ગયો. એ જ બદલવું છે. બટ આઈ જસ્ટ ફીલ કે આઈ ડોન્ટ વોન્ટ ટુ બી ધેટ પર્સન હુ ડિડન્ટ ટ્રાય. મેં છે ને તમારા કે જીગરમાં ક્યારે એવું નથી જોયું કે તમને છે ને એમ એવું હોય કે અચ્છા અમારું આટલું બધું હિટ થઈ ગયું, સ્ટીલ વેરી ગ્રાઉન્ડેડ. હાઉ ડુ યુ મેન્ટેન ધેટ? બીકોઝ બહુ બધાને મેં એવા જોયા છે કે દે આર લાઈક કે અગર 2-3 હિટ્સ પણ થયા દે આર લાઈક અરે અમે જ છીએ જે છે તે, બટ યુ હેવ નેવર ગેવ ધેટ કાઇન્ડ ઓફ વાઇબ. સો સ્ટે ગ્રાઉન્ડેડ. યાર અમે છે ને અસિસ્ટ કરતા હતા ને મતલબ, તો અમે બહુ જ ઇમારતો બનતી અને પડતી જોઈ છે. અને તમે અસિસ્ટન્ટ હો ને તો તમે બેક સીટમાં હો તો તમને એક પરવ્યુ મળે. અને મને એવું બી મેં જોયું છે કે જેટલો માણસ ઊંચો જાય એટલો હમ્બલ હોય. હવે પ્રીતમ સર છે તો હી સો ડાઉન ટુ અર્થ કે તમને તમારી જાત પર તમને શંકા આવે અગર તમને જો થોડી, પણ તેમ છતાં હું એટલું જ કહીશ કે ફેમ છે ને તો થોડુંક તમારું માથું ખરાબ કરી શકે એન્ડ યુ કાન્ટ રિયલી બ્લેમ એનીવન ફોર ઇટ. માણસ પૈસા પચાવી જાય પણ ફેમ પચાવવું ઇઝ વેરી ડિફિકલ્ટ. ત્યારે છે ને તમારા અપબ્રિંગિંગ બહુ કામ આવે. ખભા ખાલી હોય તો then you don't mind learning a thing, you know, from your assistant also. Yes. શીખતા રહેવું જોઈએ અને નવું એક્સપ્લોર કરતા રહેવું જોઈએ તો જ તમે રેલેવેન્ટ રહો, ને તો ક્યાંક તો તમારું. बॉलीवुड में भी आपके बहुत सारे ऐसे सॉन्ग्स हैं. सो ऐसी क्या खास बात आपको बॉलीवुड की लगती है? ऑफ कोर्स वी ऑल वांट कि हम गुजराती से या हिंदी इंडस्ट्री में, यू एक्चुअली वेंट टू हिंदी इंडस्ट्री मोर ऑफन देन बाद में आप गुजराती में आए हैं. मैं प्रीतम सर को असिस्ट करता था और बिल्लू बार्बर की सिटिंग के लिए हम वहाँ गए थे जी. तो कुछ 26 या 27 लोग आपको फ्रिस्क करते हैं, फिर आप शाहरुख खान सर को देख सकते हैं, you know, and why not, you know, because when the man comes पलक तो आपको पता चलता है कि क्यों कोई सुपरस्टार, कैसे स्टार अपने आप को सुपरस्टार बनाते हैं, क्योंकि वो इतने हम्बल है कि मेरे हाथ में 2 बैग्स थी तो एक बैग उन्होंने उठा लिया, फिर हमने म्यूजिक सेटिंग करी, फिर उन्होंने गाने सुने, फिर हमारी ढेर सारी बातें हुई. फिर थोड़ी देर बाद गौरी भाभी आई और वो आर्यन को नीचे लेकर आई एंड शी वाज टेलिंग दिस टाइम इफ यू मेक एनी मिस्टेक्स डैडू विल नॉट हेल्प यू. तो मैं कहा आ तो આપણા ઘર જેવું છે. This happens in our houses also. I think at the end of it, every superstar is also a human being, and every celebrity, that so-called celebrity, and I think today that difference has really sort of eloped.
everybody celebrating life and everybody is celebrating life is celebrating, but वो जो एक बात है ना कि हमको लगता है कि यार शाहरुख खान क्या खाता होगा, वो हीरे मोती खाता होगा क्या, ऐसा कुछ भी नहीं है। दे एट द एंड ऑफ इट एवरीथिंग इज क्वाइट ह्यूमन। तो वो एक बात है जो शायद अगर आप जितने करीब से देखो, जैसे कृति सनॉन है, शी इज वन ऑफ द मोस्ट सिंपल ऑफ या ऑन कैमरा, शी इज द सेम। मतलब ऐसी चीजें हैं जो मैंने विटनेस करी है, जो मुझे देख के मुझे लगता है कि चलो ठीक है, जो भी हम कर रहे हैं ठीक ही है। yes. अब तक जितने भी सॉन्ग्स हैं वो एक फादर के नजरिए से होते होंगे, एक मदर के नजरिए से होते होंगे, पर एक बच्ची की भावनाओं को जो आप लेकर आए हैं इन गुजराती प्लस इन बॉलीवुड, नाउ हिंदी में भी उसका एक वर्जन लॉन्च हुआ एंड स्टारिंग करीना कपूर ऑफ कोर्स। सो उसके लिए स्पेशली थैंक यू। कैसा रिस्पॉन्स मिला? यू रियली यू हैव अ डॉटर, इट्स क्रेजी, एंड उसने गाया है उसमें। हाउ स्पेशल दैट इज। मैं रियली अगर उस दिन के बारे में ही सोच लूँ ना, जिस दिन शूटिंग कर रहे थे हम लोग, तो तनिष्का वाज व्हाट ऑल ऑफ 6 or 7 years old, शी इज वेरी स्मॉल, है ना। और वो शूटिंग में ना थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि आपको कैमरा एंगल्स को, टेक्निकल रिहर्सल्स के लिए सबके टेक्निकलिटीज बहुत होती है, तो शी हैड टू स्टैंड फॉर 6 hours स्ट्रेट। एक 7 साल की बच्ची है, तो मैं बड़ा ये था, जिटरी था कि इवेंचुअली जब कैमरा लाइट एक्शन होगा विल शी बी एबल टू परफॉर्म। और पलक पता है एक छोटी सी टेक्निकल बात बताता हूँ, लाड़की जो गाना है ना, ये रूपक ताल में है। हाँ। इसमें 7 मात्राएं होती हैं। हमारे जो नॉर्मल गाना होता है ना 5 6 7 8 4 के गाने होते हैं, वो गाना 7 का है। तो मुझे आज भी मैं बोलता मैं एम गेटिंग गूज़बम्प्स कि रूपक ना वो गुजराती कल्चर में बहुत ही इंटेंसिकली जुड़ा हुआ रिदम पैटर्न है कि डोड़ा फाड़ी कंकोतरी वाच। और हमारे शादी के गाने, बहुत से गाने रूपक पे होते हैं। तो जब पहली बार उसने लाड़की गाया ना, तो उसने बिल्कुल सही बीट पकड़ के गाया। तो वो मेरे लिए बहुत एक सरप्राइजिंग बात थी कि अच्छा इसके अंदर वो बात है। और वो 6-7 घंटे के लिए अपनी जगह को होल्ड करके अब she performed and she performed like she owned that space। तो मैं शायद ये बातें आप नहीं दे सकते अपने नेक्स्ट जनरेशन को। ये वो बॉर्न, मतलब वो लेकर के बॉर्न होते हैं, आप वो प्यार गिफ्ट नहीं कर सकते हो किसी को कि तो। पर लाड़की की अगर बात बताऊं तो मुझे इतना याद आता है कि प्रिया लाइन लिखती थी, ऐसा भी क्या तेरा मुझसे बैर कर पराई मुख लिया क्यों फेर। अब मैं उसकी छोटे भाई को जानता हूँ, जिगर की 2 छोटी बहनें, मेरी 2 बड़ी बहनें, ये रिश्ता इतना मतलब हमारे घर में इतनी मतलब जोर से माना जाता है भाई बहन का रिश्ता। तो वो लाइन लिखकर मुझे दे तो मैं पढ़ के रोने लगूं, वो लिखते लिखते पढ़े, मैं जब भी उसको कंपोज करूं तो जिगर मेरा चेहरा देखे। तो हमने ही उसको इतना इमोशनली होके बनाया कि जब भी स्टेज पे परफॉर्म करते हैं, कितनी कहानियां हैं पलक, ये हो गया हमसे, ये ऐसी वाली चीजें हो जाती है आपसे। So true, that magic just happens like that। So true। So now coming to धीमे धीमे, of course, ऐसा है कि अब ना नवरात्रि आ रही है, मतलब सचिन जिगर का एक सॉन्ग आएगा और सचिन गाएंगे और सचिन स्क्रीन पे होंगे और हम सब डांस करेंगे। So वो एक हो चुका है अब। I mean, I'm glad to hear that। राधा ने श्याम 2.0 and now धीमे धीमे। Right। So how was that chain जो आपने बिल्ड की? My first bounce board is my mom। My mom ना is damn cool, ठीक है। उन्होंने मुझसे बोला था कि बेटा ठीक है, मैं समझती हूँ कि तू गुजराती में अलग अलग तरह के गाने बनाना चाहता है, पर वो जो खून जो जो 56 की छाती जो फूलती है गुजराती की, वो तो गरबे पे ही होती है। So true। तो नए गरबे नहीं बन रहे, ये मतलब हमारी जनरेशन में बनते थे, और आप लोग आज भी वही पुराने 20, 25, 50 पता नहीं कितने साल पुराने गरबे गाते हैं। तो तू गरबे बना यार, नए गरबे बना, ऐसे गरबे बना जो 10, 12 साल, 20 साल बाद तन्नू और उसकी जनरेशन सुन सके। सबसे पहले गोरी राधा ने कारो कांड करने का मौका मिला, फिर राधा ने श्याम। समझे ना, मेरे मन में वो राधा ने श्याम को लेके पता नहीं एक चाम है। अगर टाइम ट्रैवल करने मिले तो जाना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कि क्या होता होगा वृंदावन में, कैसे भगवान प्यार में, किसके प्यार में भगवान पढ़ते होंगे खुद। एटलीस्ट विद धीमे धीमे माय ट्राई वाज कि गाड़ी पार्क करके गरबा खेलना चाहते हो, या आप
सरसाना जाते हो या आप सिटी जिमखाना में जाते हो गरबा खेलने, या ये सब नहीं करते हो लेकिन लोचो खाने जाते हो, ठीक है, तो एक गुजराती गाना हो जो एक यंगस्टर को ऐसा ना फील हो कि मुझे एक पंजाबी गाना प्ले करना पड़ेगा मेरी गर्लफ्रेंड को वो करने के लिए। हाँ. एक गुजराती गाना ऐसा जो उसकी भाषा में हो, जो उसका प्यार व्यक्त करने में उसको हेल्प करे। आई एम हैव अ फीलिंग कि लोग उसको पसंद कर रहे हैं। इट स्टार्टेड टू ट्रेंड ऑन इंस्टाग्राम। Yes. So any behind the story, very fun story if you want to say Yeah. about Dhime Dhime. Okay, first time when I went to play Garba, right? When I was like, 12 years old, I'm talking about. So there's this girl that I used to really like, yeah. She used to wear this black chania choli and she used to come from, I don't know where she used to come from. तो मुझे होता था कि मैं एक झलक मिल जाए, एक बार हाय बोल दूं, और उतने टाइम में ना वो डांडिया खेलते हो तो आपका 4 बीट्स आप करते हो और वो निकल जाता है, तो मौका ही नहीं मिल रहा। तब से मेरे मन में था कि धीमे धीमे चालो मनड़ानी बात के पीछे मेरा एंटी क्लाइमैक्स हुआ था, लेकिन क्योंकि वो मेरे बेस्ट फ्रेंड की बहन थी। ब्रो कोड आ गया तो बीच में ब्रो कोड आ गया, तो उन्होंने नहीं ब्रो तेरी बहन मेरी बहन। Everybody is making reels और especially विराज खेला नहीं, so उसकी रील देख के we were like oh ho this is so sweet, so sweet. Yeah, he's one hell of a teddy bearish yeah, he's person. very sweet. And when I met him, first time I met him after so many years, उसका कोई कंटेंट आता ना तो मेरे फैमिली ग्रुप, हर एक का फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप होता ना, उस पे आग लग जाती है विराज। मिले थे तो उसने बोला सचिन मैं आपका सूल आवाज बोला नहीं यार, बल्कि गाना कर रहा हूँ और अब की बार इंडिपेंडेंट जाके कर रहा हूँ। पहली बार ऐसा मन में सोचा है कि एटलीस्ट धीमे धीमे से एक शुरुआत है, और अगले साल भी ढेर सारे गुजराती गाने करूंगा, वेदर फिल्म्स में जुड़कर करूं या विदाउट फिल्म्स करूं। मेरी इच्छा तो ये है कि मैं इंडिपेंडेंटली करूं ताकि मैं उसके प्रमोशन को लेके पलक तलक पहुंच सकूं। थोड़ा और इंटीरियर जाना चाहता हूं, अपने लोगों से मिलना चाहता हूं। रिद्धि आई, विशाल आया ऑन बोर्ड, तो ऐसे अपने जो स्टार्स है ना, जो मतलब जिन्होंने अपने दम पे अपना एक नाम बनाया गुजरात में, इन लोगों को साथ में लेकर करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जैसे इन लोगों को मिलना चाहिए लाइमलाइट। So true. आपको बहुत ज्यादा कॉम्प्लीमेंट्स मिलते होंगे, मना नहीं है, हर किसी ने आपको हर कोई तरह से कॉम्प्लीमेंट किया होगा, बट मैं आपको आज एक चीज बोलना चाहती हूँ, आई विश कि वो शायद आपके अपकमिंग सॉन्ग में आपको कुछ पुश दे सके। द थिंग इज व्हेनेवर आई हियर राधा ने श्याम 2.0 आई क्राई। Whenever I hear it, you play it right now, I can, मतलब उसके जो शब्द है, it so touches me. So वो जो आपकी एक वो क्वालिटी है ना कि आप टच कर जाते हो, कितने सॉन्ग्स हैं ऐसे, so that is kudos to you for that, and keep making such songs because we love it, we really love it. Thank you, that pushes me more. वो कहीं मेरे दिल को छूती है ये बातें। इवन राधा श्याम 2 की आप बात कर रहे हो तो मैं आपको छोटा सा उसके बारे में बोलता हूँ। मेरा बहुत ही जिगरी दोस्त है भार्गव, जिसने उसके बोल लिखे हैं, तो उसको मैं ये बात बोल रहा था कि जितना राधा चाहती थी कि कृष्ण वापस आए, उससे कहीं ज्यादा वो गोकुल के लोग चाहते थे। तो किसी આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ ને ગોવાળિયા, એવા કોઈ ગોવાળિયાના મનની વાત છે કે જો તું તારા માટે નો આવો પણ તો રાધા માટે તો આવો એમ, બીકોઝ वो आई थिंक પ્રેમની પરિકાષ્ઠા છે રાધા અને કૃષ્ણ, અને એને સાથે જ માણસું વર્ષો સુધી, અને એ જોડે નહોતા ને તો બી જોડે જ છે એમ. સો ટ્રુ. અને આ એક્સક્લુઝિવ કોન્ટેન્ટ તમને મારી પાસેથી જ મળશે, આવી સ્ટોરીઝ તો તમને મારી પાસેથી જ મળશે. Yeah, you are so good at, you are very good at making everybody talk their secrets. That's true. क्योंकि मेरे पास जो भी आता है मैं मतलब अरे सीक्रेट गॉसिप बताओ गॉसिप, बट द स्टोरीज आई फील दे आर सो स्ट्रांग, इसीलिए कंटेंट इतना स्ट्रांग बनता है. आई नो यू आर बिग टाइम फूडी. Oh, that's true. And you are in Surat. हम कैसे बात नहीं करें उसके बारे में? अरे please let's talk about it. So tell me about how much do you like Surat, about the food, and सबसे ज्यादा आपको क्या पसंद है? यार पलक, don't think I'm saying this to your face, but in all of Gujarat, if the most pretty Gujarati girls, then it has to be from Surat. and it's not even funny. I'm not even joking. True. वो कॉम्प्लीमेंट की तरह ले लेते हैं ना हम पर. ले लो कॉम्प्लीमेंट की तरह, अगर नहीं भी लोगे ना तो सच ये सनातन है ये बात.
Somewhere I feel there is room for art here. એવું નથી કે બોમ્બેની જેમ નથી કે ભાગતા જ હોવ તમે અને તમારી પાસે તમારા માટે સમય નથી. Every Surti always indulges in some art form. So there are these things that I really love about Surat, that culture can bloom here, and you know, and so આ બહુ સ્પેશિયલ શહેર છે. અને એમાં જે હુરટી લાલાની જે એક્સેન્ટ છે એ તો મને બહુ જ ગમે છે. લાઈક ઇટ્સ ડેમ ક્યુટ. બટ ઇન માય લાઈફ આઈ હેવ 3 નાસ, ખાના, સોના એન્ડ ગાના. તો ખાના comes first, like you know, if good food means good mood, like then good music will follow, right? So Surat, okay, I'll tell you, everybody talks about Surat no locho, but I come to Surat only to eat khamni. All these food items are very time sensitive कि वो बाद में बिगड़ जाते हैं, तो ऐसा भी नहीं है मैं सूरत से मंगवा लूंगा. मंगवा ले सकते, राइट. Yeah. So next time whenever you will come, Martini Khamni will be waiting here for you. Yeah. So lastly My FM पर हैं आप. So My FM के बारे में क्या बताना चाहेंगे, आपके एक्सपीरियंस के बारे में क्या बताना चाहेंगे? यार मैं बहुत ही impressed हूँ with the whole philosophy in My FM. This is the only radio station in Gujarat that actually does not mind playing Gujarati songs. Yes. Such a sad story that we don't play Gujarati songs. And whenever I've spoken to Ahmedabad My FM or Surat My FM, I am here with you today. It is a very homely feeling. It's finally a feeling where I feel कि जो हूँ मेहनत करूँ છું ને તમારી મહેનત લેખે લાગતી હોય મને always My FM માં આવીને લાગે છે. क्या बात है, क्या बात है. Thank you so much Sachin for coming here. સાથે સાથે lastly experience तो of course you said. What do you want to say about me? Palak, I think one very important thing that you should do is you should start coffee with Palak. અને એના માટે તમારે સ્પેશિયલી સુરત આવવું પડશે. ચલો તો પહેલો એપિસોડ મારી સાથે. પાક્કું, ડન. ધુમ્મસ પર ડન છે. હું પ્લાન કરું છું અને તમને કોલ કરું છું કે તમારે આવવાનું છે, you have to come. Because you have this knack of bringing out some very very sensitive, very delicate things from people's life, so you must definitely do that. And I think એવો વિશ્વાસ ખબર નહીં, somehow you exuberate that sort of a vibe that people trust you. I hope you yes मैं सबसे निकलवा लेती हूँ. I'm that conversational wizard. Yeah, that's true. So thank you so much Sachin for being here and talking to us, and of course hit हो ही रहा है धीमे धीमे. I hope वो धीमे धीमे बहुत ज्यादा हिट हो जाए. 94.3 My FM थी, हूँ तुम्हारी आज पलक. Stay tuned. चलो अच्छा सुनते हैं. So that's it. I hope you enjoyed. ऐसे होता है My FM में एक सेलिब्रिटी इंटरव्यू. बहुत ज़्यादा बातें हुई और बहुत ज़्यादा मस्ती भी हमने की. उसके बाद रील भी बनाई. उस रील वो एक्चुअली ना धीमे धीमे का हुक स्टेप है, सो वो रील भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ. प्लीज़ गो चेक इट आउट. बड़ा मज़ा आया और ऐसे ही व्लॉग्स आपके लिए लाते रहेंगे. आई नो लास्ट वीक सिर्फ एक ही व्लॉग आया था. आई ट्राई एंड डू इट मोर ऑफन. मतलब मैं कंसिस्टेंसी रखने की ट्राई करूँगी, पर क्या हो रहा है ना कि अभी नवरात्रा चल रहा है, सो उसके लिए भी भाग दौड़ चल रही है. सो या तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. मच प्यार टू यू. बाय बाय.